قیامت کی جو آپ نے ڈیٹ دی ہے، ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ جی ہمارے پاس جو ہے ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے، بہت کم رہ گیا ہے۔ اور ایک تو ڈیٹ جو میں نے اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ جس میں سور پھونکی جائیں گی، وہ 1532 ہجری پہلی محرم جمعے کا دن آئے گا۔ 1532 ہجری پہلی محرم جمعے کا دن، ہاں یہ میرا خیال ہے یہ تو پھر آنے والی ہے۔ ہاں یہ 1532 ہجری، اب آپ اندازہ کر لیں کتنا فاصلہ ہے بیچ میں ہجری 40-45 سال۔ نہیں 32 تو وہاں سے ہو گئے، اور اب آپ 65 سال تقریباً، یا 56 سال، کتنے سال؟ 55 سال آگے، 55 سال اور 32 سال آپ اور جوڑ لیں تو کتنے ہو گئے؟ 55 اور 32 ہو گئے 80 87 سال، ٹھیک ہے نا؟ یہ 87 سال جس میں سور پھونکی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہے نا وہ بڑے یعنی ہیبت ناک ہے، دل دہلانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ ایسی تصویر ہے کہ جس میں آپ اگر میں میری بات کو سمجھ گیا یا میں تصویر بنانے میں کامیاب ہو گیا آپ کے سامنے، حدیث اور قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو شاید آپ سونا بھول جائیں گے، آپ دیکھنا بھول جائیں گے بالکل، اور وہ بڑے قریب ہے۔ لیکن تجانی صاحب ایک بات ہے کہ قیامت کا تو علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیٹ اور ایگزیکٹلی دن تو نہیں تعین کیا کہ بھئی اس دن آنا ہے، ڈیٹ آنی ہے، ایک سوال ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے چیزوں کو دیا جو آپ بولے سور پھونکی جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کو ہی خبر ہے، تو سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے ہی متعلق سوال کرتے ہیں، آخری میں اس آیت کے آخر میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ استعمال کر کے بولا، اکثر ضد ہے کس کی؟ کم کی۔ اس میں جو اولا ہے یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، ان کو علم تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب حضور کے بعد صحابہ کو بھی ہوں گے، جو خاص صحابہ ہوں گے، حضرت علی پہلے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ باب المدینہ العلم ہے وہ، ان کو علم تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب بات یہ کہ آپ نے کہا تاریخ نہیں بتائی، تو حضور کے زمانے میں تاریخ کا اجرا ہی نہیں ہوا، وہ تاریخ تو پھر حضرت مولا علی کے دور میں، حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کے دور میں اور مولا علی نے کی، ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہجرت مدینہ کے بعد، ہاں جب ضرورت پڑی کہ تاریخ لکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ ہجری تاریخ شروع کرے، ہجری تاریخ شروع کرے اور چاند کی تاریخ سے اس کو بیان کر دے، تو اس طریقے سے بات چلی۔ اچھا اب حدیثوں سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1500 برس کی مہلت دی گئی ہے، اور امت سے مراد تمام دنیا ہے، اس سے مراد صرف مسلمان نہیں آتا ہے، تمام دنیا، ٹھیک ہے نا؟ حدیث اور روایتوں سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلی امتوں کی مدت ہم سے زیادہ تھی اور ہماری کم ہے، لیکن ہمیں اجر میں زیادہ ہے، ہم اجر میں زیادہ ہے، دگنا ہے، پر مہلت میں ان سے کم ہے۔ وہ کیسے نکالا 1500 والا؟ اچھا 1500 کیسے نکالا؟ 1500 کے لیے تو حدیث ایک ہے، اور دیگر حدیثوں میں روایتوں میں جہاں ان کی عمر کی ڈیفائن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی 2500 برس ایک روایتوں سے، اور ایک روایت سے 2100 برس بنتی ہے، اور یہاں جو ہماری جو عمر مدت بنتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو داؤد میں بھی ہے اور سنن احمد میں بھی ہے، دونوں میں، ان میں بس تھوڑا سا الفاظ کا وہ ہے اختلاف، لیکن معنی یہی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کی مدت کے لیے تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے آدھے دن کی، اور پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کتنی مراد کریں گے؟ 500 برس، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا 1000 برس ایک دن ہے، میرے پاس ایک دن، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس وجہ سے آپ نے 500، یہ 1500 برس یہ صرف میری نہیں، اچھا یہ بات بتا دوں، 1500 برس پہ مجھ سے پہلے بھی علماء اتفاق کر چکے ہیں، یہ بات میری نہیں ہے صرف کہ میں نے کوئی نئی بات نکال لی، یہ میری نئی بات نہیں ہے، پچھلے بھی جو علماء جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی ڈیفائن کیا کہ 1500 برس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے نا، اس حساب سے کیا بنتی ہے جو ڈیوریشن ہے؟ اب 1500 برس جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا 2 گردشیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس پہ فرما دیا کہ چاند اور سورج کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم اپنے دنوں کو اور برسوں کو اس میں گن لو، صحیح ہے، چاند کی الگ ہے، سورج کی الگ، اب ان کے بیچ میں ڈیفرنس ہے 11 دن کا، اچھا 11 سال میں، صحیح، اور ایک صدی میں 3 برس کا آ جاتا ہے ڈیفرنس، اور 1500 برس میں 45 برس کا ڈیفرنس آ جاتا ہے، جو ڈیفرنس آتا ہے 1500 برس میں 45 سال کا ڈیفرنس آ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ ڈیفرنس کو سمجھنا ہے کیونکہ جو واقعات اور حوادث جو آئیں گے، ٹھیک ہے نا،
उससे हमें समझ में आती है कि ये डिफरेंस जो है इस तरीके से डिवाइड होंगी। एक तो बात ये है कि हुजूर की बासत से लोगों पे अल्लाह ताला की हुज्जत कायम हो गई, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हुज्जत शुरू हो गई अल्लाह की कि यह आखिरी नबी आ गया, अब इसके पैगाम को जो तस्लीम करेगा वही कामयाब है। तो आपकी बासत से हमने सूरज की गर्दिश को तैरना शुरू किया, क्योंकि चांद की गर्दिश का हिसाब जो है हिजरत से शुरू हो गया, वो 13 बरस की बात है, ठीक है ना। तो 45 में से 13 बरस पहले काट लिए तो कितने बचे? 32 साल। 32 साल। अब 32 साल आगे कर दीजिए जाए, जब 1500 बरस हिजरी पूरे होंगे तो आगे 32 साल होंगे। तो जब 32 साल पूरे होंगे तो पहली सूरत होंग दी जाएगी। पहली सूरत इस हिसाब से 1532 हिजरी पहली मुहर्रम कितने 87 साल बन रहे हैं? ये तो 87 साल बन रहे हैं टोटल, जो अभी साहब जो हिसाब के हिसाब से 87 साल पहली सूरत फूक दी वो जाएगी। पहली सूरत होगी। लेकिन तिजानी साहब, हजरत तमीमदारी पे आ जाते हैं। हजरत तमीमदारी ने दज्जाल से मुलाकात की और दज्जाल ने कुछ चीजें पूछी कयामत के मुताबिक कि मैंने आना है, फला चीज हो गई है, फला चीज हो गई है, फला चीज हो गई है। तो उनमें से बहुत सारी चीजें तो अभी नहीं है। मैं बताता हूँ तो वो अभी ये 87 साल में ये सब कुछ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। अच्छा, बल्कि उससे पहले जो कुछ होने वाला है वो तो आप उसको जो समझेंगे तो आपकी तो पैरों तले जमीन निकलने वाली है। अभी मैं बताता हूँ। पहली चीज तो यह है कि कयामत की बहुत सी अलामतें हैं कुरान में जिसका जिक्र है, और एक जो मशहूर हदीस है हदीस जिब्रील, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने हजरत उमर से ये मतलब रिवायत है। हदीस जिब्रील जो है उसमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बड़ी अलामतों का जिक्र किया है। एक अलामत तो यह है कि कहा कि नंगे दड़ंगे लोग बकरियां चलाने वाले ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, यानी एक दूसरे से सबकत ले जाएंगे। सही। और चूंकि मेरी पैदाइश शारजा की है, वहां मैं पला पुसा हुआ हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से वहां रेगिस्तान के अंदर, ये मैं जब 4-5 साल का था उस वक्त, तो शाम को काले शाम को यूं चलते हुए देखा था। अच्छा। और यानी वो ऐसे हालात थे जहाँ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, और वहीं मेरे सामने यही बदू आते थे। जुम्मे का दिन एक एरिया है जिसमें रोला कहलाता है, वहां पे आके अपनी चीजें बेचते थे जुम्मे के दिन। तो ये मेरे सामने ही सारी डेवलपमेंट हुई, तो मुझे नजर आ गया सारी चीजें, उनके हालात पहले कैसे थे। और इसमें भी ये था कि बकरियां चलाने वाले बदू थे, और जो समंदर के किनारे रहते थे वो भी दरगुर हाल में रहते थे। उनका काम सिर्फ ये होता था समंदर से मछलियां पकड़ना या मोतियां डाके लेके आना। ये एक निशानी हो गई है, ये निशानी पूरी पूरा गल्फ जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। दूसरी निशानी जो है उसको समझना लाजमी था। दूसरी निशानी हुजूर साहब ने फरमाई है कि लोंडियां जो है अपनी मालकों को जनेगी। अब इसकी तशरीह उलमा ने आमतौर पे यही ली कि जनाब बदतमीज बच्चे पैदा हो जाएंगे या तो ये ऐसी कोई निशानी नहीं थी जो पहले नहीं हुई हो। इसमें मैं थोड़ा उलझ जा कि यार ये ऐसी कोई बात तो मुझे समझ में नहीं आई है कि लोंडिया मालकों को जनेगी। तो लोंडिया तो बहुत पहले भी हजरत जो आप कह सकते हैं बांदी कह सकते हैं, बीबी हाजरा जो थी बीबी सारा की बांदी थी, और उनके बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो हजरत इस्माइल से तो नबी थे और नबी तो सरदार होते हैं। तो ऐसी क्या ये निशानी जो हमें समझ में नहीं आ रही है? इसके लिए एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नुअमान बिन बशीर की। ये देखें, ये जो मौजूद है वक्त आखिर, ये एक फिक़ह का दर्जा रखती है समझने के लिए। नुअमान बिन बशीर की जो हदीस है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पूछा गया कि मुसलमानों की जो सियासी निज़ाम के ज़माने हैं वो 4 हैं। एक तो नबुव्वत का ज़माना है, वो 5वां पहला वाला। उसके बाद 4 निज़ाम है। खिलाफत आला मनहाजुन नबुव्वा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा तो फिर मलक अब्दात यानी काट खाने वाली बादशाहत, फिर उसके बाद जबरी बादशाहत जो हम इस दौर में रह रहे हैं, फिर उसके बाद खिलाफत आला मनहाजुन नबुव्वा। ये जो जबरी बादशाहत है ना, इसको अगर आप समझेंगे तो आप वो लोंडियों की बात समझ जाएंगे। वो क्या थी? असल में अरबी लुगत के अंदर एक लफ्ज है उम्मा, जिसके मतलब है कौम, और वहां हदीस में लफ्ज आया अम्मा, इसके मतलब है बांदी। अच्छा, ये 2 अलग लफ्ज है। दोनों तलफ़्फ़ुज़ में अलग है, लिखने में तकरीबन ऐसे लगेंगे कि एक है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ अलग है। एक में पेश लगता है और एक में जबर लगता है, पर ठीक है उम्मा और अम्मा का फर्क आ जाता है। तो मुझे सिर्फ ये ख्याल गुजरा, ये ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि शायद हो सकता है रावी को सुनने में समझने में गलती हो सकती है, ठीक है ना। या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तावील उम्मत पे छोड़ दी थी कि जब वो जमाना पाएंगे तो वो खुद ही तावील करेंगे। तो तावील ये बनती है कि आखिरी जमाने में ऐसी जबरी हुकूमत यानी इस्टेब्लिशमेंट आएंगी कि जिसमें कौमें लोंडियां बना दी जाएंगी और वो फिर जो है अपने मालकों को जना करेंगी यानी चुना करेंगी।
तस्वीर वादे आपने इसमें से नहीं, तस्वीर वादे है ना आपके सामने, आप किस जमाने में रह रहे हैं, आप गवाही दे। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, आप गवाही दे अपनी मर्जी से। ये आपका कयास है, लेकिन ये कयास नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है जिस जमाने में हम रह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि रावी ने जो सुना हो सकता वो है, एक अलग एहतमाल है, वो एक अलग एहतमाल है, वो गलत हो सकता है। तो आप इस चीज में कैसे श्योर हैं? ये तो जमाने के देखें, वो जो हमें हदीस मिली ना कि पहला जमाना खिलाफत आला मनहाज नबुवा है, सही है, वो खत्म हो गया। फिर मलक अवगाद काट खाने वाली बादशाह, ठीक है ना, वो जमाना भी खत्म हो गया जब सल्तनत थी, सुल्तान हुकूमतें थी, और आज भी है कुछ ऐसी सल्तनतें जो अपनी मतलब खानदान के नाम से चल रही है। इस तरीके से आज का दौर जो है वो जबरी है। ठीक है, यानी चलिए इन चोर डाकुओं को हमने बिठा दिया है, आपने इन्हीं को चुनना है। सही है, ये हो गए दो निशाने हो गए। चलिए ठीक है ना, मैं सियासत में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जिस जमाने में आप रह रहे हैं ना, ये कयामत की आखिरी जमाने की निशानदेही कर रहे हैं कि इसमें आपकी हालत उन्हीं बांडियों की तरह है, लोंडियों की तरह, जो आप अपने तौर पे चुनते हैं, यानी जनते हो हुक्मरानों को, और आपको वो बांडी समझते हैं। ये हदीस हमें आपको समझा रही है। सही है, ठीक है ना, इसको कहते हैं जबरी जमाना, जबरी मुमलिकत। ठीक है ना, आप मजबूर हैं इसमें, आप बदल नहीं सकेंगे कुछ किसी को। तो बात करें, अच्छा अब एक ही अलामत पूरी हुई, अब एक और अलामत आपको बताता हूँ कुरान शरीफ की। और ये कल ही एक दोस्त है मेरे अहबाब में से, फ्रेंड में से, मिडिल ईस्ट में रहते, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि यार ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि पहले जो इलाके थे किसी जमाने में जो जिन पे अजाब उतरा था, तो वो वीरान होते थे, अब उसको बाकायदा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया और वहां पे रिजॉर्ट भी खोल दिए गए हैं कि भाई आप आए देखे वगैरह। तो ये बताइए क्या क्या इन इलाकों को शरई तौर पे इजाजत है आबाद होने की? तो मैंने कहा देखें, हजूर की एक हदीस है, तो हमने फरमाया वो ग़ज़वा तबूक के बाद आप वापसी आ रहे थे तो एक जगह से गुजरे, तो वहां पे हजूर साहब ने साहबा को कहा कि यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, यहाँ पे ठहरना नहीं, कि इस इलाके में अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया था, तो यहाँ से अगर गुजरना है तो जल्दी गुजर जाओ। तो इससे मतलब ये हुआ कि इन एरियो में जहां अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है उन एरियो में ठहरना यानी जायज नहीं है। आज का दौर ये हो गया कि इन एरियो में स्पॉट बनाने जा रहे हैं। अलूला है एक जगह, बिल्कुल, और मैं समूद किया, उनको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। अब ये आयत आप पढ़े सूरत अंबिया की, उसमें सूरत अंबिया की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हराम अला करियत, मैं इसको उर्दू में कर ले लेता हूँ ताकि अगर मुझसे कोई तलफ़्फ़ुज़ कुरान की आयत, ठीक है, कि हराम है उस शहर पे, उस बस्ती पे कि वो दोबारा लौट के आए, दोबारा आबाद हो जाए। यहाँ तक हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज माजूज, यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाए, और वो मिन कुल्लि हदबिन, वो हर बलाई से या टेले से जो उतराई से नीचे आएंगे। इससे मुराद ये हो गया कि जब ये बस्तियां दोबारा से आबाद होना शुरू होंगी तो याजूज माजूज का खोलने का वक्त करीब आ जाए।